यीशु तारा नाम महिमा, यीशु तारा नाम महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सादर करें। बहुत दूर से एक औरत उसको देख लिया। ഏകദേശം 40 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കും. करीबन 40 साल की एक औरत, നല്ല സുന്ദരിയായ യുവതിയായിരുന്നു. एक खूबसूरत औरत थी वो पहले से, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവളുടെ രൂപം അങ്ങനെയല്ല. उसको रूप वो बदल हो चुकी है। കാരണം കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് അവൾക്ക് രക്തസ്രാവം എന്ന രോഗമുണ്ടായിരുന്നു. क्योंकि गया हुए पिछले 12 सालों से खून बहने की बीमारी है। എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, मेरे बात सुनने वाले जो भी बहन है, നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും പറയുവാൻ കഴിയാത്ത രോഗത്താൽ വലയുന്നവരായിരിക്കാം. अब छुपा कर रखने वाला कोई भी बीमारी आपके साथ होगा। ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ, हमें सुनने वाला कोई भाई, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം. आपके परिवार में किसी के साथ ऐसी बीमारी हो सकता है। നമുക്കൊരു പനി വന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം. हमें बुखार हो गया तो हम किसी से बोल सकता है। നമുക്ക് ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ട് പറയാം. हमारा हार्ट में जो प्रॉब्लम होगा तो हमें किसी के साथ बता सकता है। എന്നാൽ ചില രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുവാൻ പറ്റില്ല. ऐसे ऐसे कोई बीमारी होते हम दूसरे लोगों से नहीं बता सकते हैं। അത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. वो संकट की बात होते हैं। പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല. बहुत सारे बीमारी ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब से भी हम बता नहीं सकते। പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. लेकिन यीशु मसीह की एक खासियत बात होते हैं, അവനോട് രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല. उसके साथ बीमारियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। അവനെല്ലാം അറിയുന്നു. वो सब जानते हैं। അവനെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ മതി. अगर आप छूने के लिए कोशिश നീ करेंगे ഇന്ന് तो സൗഖ്യമാകുവാൻ आपकी പോകുകയാണ്. जिंदगी में छुटकारा हो जाएगा। യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്പർശിക്കുവാൻ अगर यीशु मसीह को छूने के लिए आप कोशिश करेगा तो, ആര് തയ്യാറാകുന്നുവോ जो भी कोशिश करेगा तो അവനൊന്ന് സൗഖ്യമാകുവാൻ वो പോവുകയാണ്. आज चंगाई पाने जा रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ये औरत दूर से देख लिया, യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോവുകയാണ്. यीशु मसीह ऐसे चलता जा रहा है। യേശുവിന് ചുറ്റും വലിയൊരു പുരുഷാരമുണ്ട്. यीशु के चारों ओर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുക, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, वो दिल से ऐसे चाहने लगी
ഞാനൊന്ന് ചെന്ന് തൊട്ടാൽ മതി എന്റെ രോഗസൗഖ്യമാകും. मैं जाकर उसको छूनेगा तो मुझे चंगाई मिल जाएगा. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കാരണം इसका मतलब यही है അവൾ വലിയ ധനികയായിരുന്നു. वो धनी एक औरत थी. അവളുടെ സകല ധനവും അവൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊടുത്തു, വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. उसके सारे धन डॉक्टर के पास दे दिया. പക്ഷെ ആർക്കും അവളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. वो किसी को चंगाई नहीं दे पाया. അതുകൊണ്ട് അവൾ തീരുമാനിച്ചു, इसलिए उसने ऐसे सोच ली ഇനി എത്ര കഷ്ടം സഹിച്ചാലും ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കും. कितना भी कष्ट सहन कर कर मैं यीशु मसीह को चुनूंगा. നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളണം. अब एक बात सोचना चाहिए, അന്നത്തെ കാലത്ത് उन दिनों में രക്തസ്രാവമുള്ള സ്ത്രീക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ പ്രമാണമില്ല. खून बहने की जो बीमारी जिसको है वो बाहर आने के लिए उसको हमें अनुमति नहीं थी. രക്തസ്രാവമുള്ള സ്ത്രീ പുറത്തു വന്ന് ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും. हमें जो खून बहने की बीमारी वाली औरत किसी को छूनेगा तो वो औरत को पत्थर मारकर खत्म कर देगी. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവനെ പോലും പണയം വെച്ചാണ് उसका जीवन का बारे में जान की खतरा भी नहीं सोचा. അവൾ യേശുവിനെ സ്പർശിക്കുവാൻ यीशु ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मसीह के आप पास आकर सुन लिया. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക, आप सोचो, അവൾ യേശുവിനെ സ്പർശിക്കണമെങ്കിൽ और अगर वो यीशु मसीह को छूने के लिए कोशिश किया, അനേക വ്യക്തികളെ തൊട്ടുകൊണ്ടേ പോകുവാൻ പറ്റൂ. बहुत सारे इंसान को छू लिया. പ്രമാണമനുസരിച്ച് जो वजन ऐसे करते हैं, അവൾ ആരെയൊക്കെ തൊടുന്നു അവരെല്ലാം അശുദ്ധരാകും. जो जिसको भी औरत टच करती है वो अपवित्र हो जाते हैं. പ്രമാണമനുസരിച്ച് कानून ऐसे कहते हैं, അവൾ യേശുവിനെ തൊടൽ യേശു അശുദ്ധമാകണം. अगर यीशु मसीह को छूनेगा तो यीशु मसीह अपवित्र हो പക്ഷേ അവൾ जाएंगे. എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ? लेकिन उधर कैसे हो चुका है, അവൾ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് बहुत कष्ट सहन कर कर യേശുവിന്റെ പുറകിലൂടെ ചെന്ന് यीशु मसीह के पीछे से യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന് തൊങ്ങലൊന്ന് തൊട്ടു. यीशु मसीह के कपड़े में वो चूल लिया. ആ നിമിഷം അവൾക്ക് സൗഖ്യമായി. जल्दी से अचानक को चंगाई पा लिया. യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രവഹിച്ച് ये यीशु मसीह से शक्ति बाहर आ गई. അവൾ സൗഖ്യമായി. वो चंगाई पा लिया. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, मुझसे सुनने वाले सारे लोगों, നിങ്ങൾ സകല തടസ്സങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് सारे रुकावट को झेल पाकर യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ മതി. अगर यीशु मसीह को छूने के लिए आप कोशिश करेगा तो നിങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. आप चंगाई पाएंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു? परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചു, पीछे मुड़कर पूछा, ആരാണ് എന്നെ തൊട്ടത്? कौन मुझे छुआ? എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായി. सारे चकित हो गए. അവര് ചോദിച്ചു, എന്താ കർത്താവേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? प्रभु आप क्यों ऐसे कहते हैं, അനേകർ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, बहुत सारे लोग आपको छूते हैं, എന്തുകൊണ്ടാ നീ ചോദിക്കുന്നത്? पर आप क्यों ऐसे पूछते हैं? യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, यीशु मसीह ने कहा, എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. उससे एक शक्ति बाहर ഓ, गई. ഞങ്ങളിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവന്റെ ശക്തിയാണ്. मैं जो भाषण करने वाला जो चीज है परमेश्वर की शक्ति है. അവന്റെ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. उसकी जो शक्ति सारे काम करते हैं. ഞങ്ങളിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ അവന്റെ ശക്തിയാലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. वो हम जो भाषण करते हैं परमेश्वर का शक्ति के द्वारा भाषण करते ഇപ്പോൾ हैं. ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശക്തി ഇവിടെ जब പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम भाषण करते हैं उसका शक्ति इधर है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. अच्छा है, वो बढ़िया है, वो सुंदर है, बड़ी गोरी है, सूरत है, दो बड़ी ताली है, सुनेगा और सही समेगा, जो बात नहीं बोलेगा ये बात नहीं कहेगा कैसे लगेगा? तो मर्जी वो लगेगा। जब मैं बोलता है तेरा उनको है जब मैं बोलेगा तेरा वंशुगा खूबसूरत है और तेरा तुम्हारी आदत है, बेटा है तो भी और विंडो है तो भी वो बोलेगी लिखेगा आप सुंदर है, तो भी कहता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेटा है प्रेम आने है, प्रेम ले भी है, परमेश्वर से माने भी है, परमेश्वर से ले भी है। हालेलुया 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 हालेलुया। समझ में आया होगी?
हमको सबको समझ में आया और सबने समझ में आई, इसलिए पति पत्नी के बारे में गा दिया। इतने एक भाई ने घेरवाला पति पत्नी बताया जाता है, अब सबसे अच्छा मिसाल वही है। सब करता बढ़िया उदाहरण से इसलिए आपको बहुत जल्दी से समझ गए। इतने कमन 6 बात एकदम समझ पा रहे हैं। दुनिया में हम सब है, आप सब लेकिन हमारा रिश्ता प्रेम से होता है और आप हगो प्रेम लाग। अभी मैं जब घर में फोन करता हूँ, जब फोन करो, मेरे छोटे सा बच्चा हमारे नाना सोड़ा मुझसे बात करना चाहता है, बात करे मुझे मालूम है, हमें खबर है वो ठीक से बात नहीं करता, तो फिर बात नहीं करता। मैं सच बोल रहा हूँ, वो आशीष जब वो बात करता है, जरा बात करें मतलब बात किसी को सही ढंग से समझ में नहीं आती, बीजान के लिए मुझे खबर नहीं पड़े। वो ऐसे करते हैं, राजस्थान के लिए ऐसे बोलते हैं, राजस्थान राजस्थान बोलता है, राजस्थान उसको राजस्थान बोलना नहीं आता, राजस्थान किताबत हो रहा है, वो गुजरात उसको बोलना नहीं आता, पूजा बोलता है। गुजरात में जितना तो पूजा देते हमें, बाकी किसी को मालूम नहीं पड़ता, जीवन के भी खबर नहीं पड़ती। शायद मुझे मेरे बीवी को भी पूरा मालूम नहीं पड़ता। मैंने विश्वास है कि गैराज में बेटा होते वो बात हवा जैसे मुंह खोलेगा फिर ये मोटू खोले का पूरा चलता है, हमें खबर पड़े मार हो रही है। तो बात में कोई खूबसूरत भी नहीं है, बात में कहीं खास ताजी बात नहीं है, सुंदरता ना है कि मैं उसका आवाज सुनना चाहूँ, बात हमारा प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपसे लाज करे प्रेम चाहे आप अनपढ़ हो, हम अनपढ़ है, चाहे आप पढ़ा लिखा हो, पढ़ है, आपको अंग्रेजी मालूम नहीं हो, अंग्रेजी खबर नहीं है, केवल बागड़ी मालूम हो, खाली बागड़ी आवड़ती है, बात करो बागड़ी बात करो। लेकिन एक बात है, और एक बात है, बागड़ी में सुनना चाहता हो, बागड़ी में प्रभु हमारा मंदिर है। हालेलुया 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 हालेलुया। दुनिया में अलग अलग विधि का प्रेम होता है, दुनिया में अलग अलग प्रकार में लाज में प्रेम के बारे में बताना नहीं चाहता। वजन में पवित्र बाइबल में प्रेम के बारे में, एक दिन लाज में प्रेम के बारे में अलग अलग भाषा इस्तेमाल किया, अलग अलग वाणी भाषा। अच्छा एक बात इन्हें सब करते खास हुआ, एक भाषा एक बात भाषा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो अतरवानो है, उसको बोलते हैं इनके बारे इन्हें अगापे के बारे, वो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने लाज में प्रेम दुनिया को बचाने के लिए दुनिया ने वसाड़वा अपना जान देकर खुद मरी ने हमें बैठा लिया, अपना ने वसाड़ देता प्रेम का होता है, लाज में केवल है वो अगापे, इन्हें अगापे याद हालेलुया 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 प्रेम करता है, ईश्वर समाते लाज में प्रेम करे, परमेश्वर से अच्छा प्रेम करता है, ईश्वर समाते बढ़िया लाज में प्रेम करे। एक बात है और एक बात है, आप भूल खोगा मुड़ खोली ले, आप बोलना चाहिए हमारे भूलो चुके प्रभु यीशु प्रभु वली से लेकर सारे घेरवाला ने, पत्नी से लेकर घेरवाले ने, मेरे खानदान से लेकर बेटा बेटी ने आपसे अच्छा प्यार करता हूँ, समाते लाज करो, कोई नहीं भाई अबे इधर बैठा है तो परमेश्वर यीशु मसीह का है, प्रभु यीशु मसीह के हैं, यहोना की के हैं, यीशु मसीह ने परमेश्वर यीशु प्रभु अधिक प्रेम रखा, 10,000 लाख में प्रेम चले थे, चला था वो सभी ने चले का इन्हें हमारा वैश्व यहोना को उन्होंने परमेश्वर ने सबसे अच्छा प्रेम रखा, 10,000 लाख का यहोना ने यीशु मसीह को परमेश्वर यीशु प्रभु ने अच्छा प्रेम किया, बढ़िया लाज करो, उन्होंने सुसमाचार लिखा, सुसमाचार लगी, यहोना का सुसमाचार लिखा, सुसमाचार लगी हालेलुया। यीशु मसीह अब यीशु प्रभु आपसे प्रेम करता है, अपने लाज में प्रेम करे, लेकिन दुनिया से आपका शरीर से तुम्हारा हमरा से हजवरा से अधिक प्रेम से रखेगा तो प्रेम रखूंगा तो आपसे तमने यहोना के साथ यहोना तेरा चाहिए, इससे प्रेम रखा, वो लाज में प्रेम से प्रेम रखेगा, प्रेम परमेश्वर प्रभु यीशु रखेगा, प्रेम देखो यहोना ने लाज देखो, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया, तेरे क्रूस पर चढ़ाई दो, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाई दो, पतरस भागा, पतरस न खो, याकूब भागा, याकूब न खो, सारे लोग भागा, लेकिन क्रूस के किनारे पे क्रूस में आते परमेश्वर का चेहरा देखते हुए परमेश्वर ने मूर्ति को लाएंगे, खड़ा हो गया यहोना का इधर ही जो किसी से प्रभु ने बात करी, प्रभु के ने हाथ रात नहीं करी, यहोना को बुलाया, यहोना ने जो खुद का माताजी को खुद में आई है, हजी तुम्हारा बेटा और किधर आता बेटा है, तुम्हारा माताजी आई है,
हालेलुया हालेलुया। सबसे बड़ा काम है माता जी को संभालने के लिए आई ने हमारा उनके भाइयों का हाथ में नहीं दिया, हाथ में नहीं ली, लेकिन उसका प्रेम लाज में रखो होने का था उन्होंने हाथे उनके माता जी को छोड़ दिया। आई ने होती दीदी आज सुबह के समय में परवर्ती समय में समूह परमेश्वर में ज्यादा परमेश्वर से बाजार लाभ कर रहे थे। सबसे बड़ा काम बाजार संकट मुद्दा, सबसे बड़ा अगुवाई संकट मुद्दे अगुवाई, सबसे बड़ा आशीष आंगली मुद्दे आशीष किसी और को देने से ज्यादा डीजल आलवाते की पेड़ आपको देगा, समझ परमेश्वर देगा। आपका क्या जरूरत है, हमारा हो जरूरत है। आप और खूबसूरत भक्ति को दिया और बढ़िया ताजी घेरा रियाली खूबसूरत है, बढ़िया ताजी है। प्रेम देखने से इन्हें लाज रखवा देगी। प्रभु का प्रेम देखता हूँ और प्रभु की वजह लाज रखो। प्रभु का सुंदरता हमारी प्रभु की सुंदरता है, खूबसूरत है। मार घेराली करते ही वजह सुंदर है, बहुत ही बड़ा है, बड़ा मुद्दा है। मेरे फिर मर जाएंगे, मार घेराली मरी रहेगा, फिर मारा नहीं है, मजा नहीं है, वो जिंदा है, जीता है, जीता नहीं है, जीता है, जीता है, जीता मुझे नहीं मालूम है, मेरा पीढ़ी सुनने में पका थी, मैंने खबर था मार के वाले हरे मरेगा, उसके बारे में सोचेगा तो वो इन्हें बारे में होगा। तो जिस जगह में मैं जा रहा है जिस जगह में से मारे जाऊँ मैं नहीं जा पाऊँ, बहुत आने गए उसकी भी बीमारी है, इन्हीं तरह से इन्हें खबर थी। मैं एक हकीकत बोलना चाह रहा हूँ, वो हकीकत पति पत्नी को बचा नहीं सकती। बहुत सी पति पत्नी एक बीजा मसाली ना पति को उठार नहीं दे सकते, इन्हें घेरवाला मसाली ना सकती, उद्धार नहीं कर सकते। आपको उद्धार पाना है, हमारे उद्धार दिए उद्धार करवा आते लाज रखो, प्रेम रखो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मेरे के समय में आज दादा मिलकर मेरे भाषण में बंद कर रहा हूँ, वो हमारा भाषण भूखा होगा, आप भूखा होगा, तमाम भूखा ये में आपको खाना खाना है और तमाम खाना भी खाओ, हमारे पवित्र बोलेंगे इन्हें तेरा परउपज खुंची वजन कई क्वेश्चन खुंची वजन और जी शादी में वजन का खुंची वजन पवित्र बाइबल में जो शादी और वजन खुंची किस लिए होता है, इस शादी होकर रहे हैं, खुंची किस लिए होता है, शादी होकर रहे हैं ताला खोलने के लिए, ताला उगाने वाले शादी जब ताला नहीं है, जब ताला ना है खुंची का जरूरत नहीं है, शादी की जरूरत नहीं। हालेलुया हालेलुया। जब चोर नहीं है, जब चोर रहे पुलिस का जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है। जब चोर नहीं है, जब चोर रहे थाने का जरूरत नहीं है, जब थाना नहीं की जरूरत, जब रेलगाड़ी नहीं है, जब रेलगाड़ी नहीं है, जब का जरूरत नहीं है, रेलवे स्टेशन की जरूरत है, जब थाना नहीं है, जब तालों न है, जब पूंजी का जरूरत नहीं है, शादी की जरूरत है। दुनिया का कोई नहीं सके, दुनिया में कहीं नहीं सकती, कोई भी ताला लगा दे, कोई भी ताला लगा दो, लेकिन हमारे पास एक कुंजी है, अपने का एक शादी है, वो माफ का कुंजी है। इस शादी बड़ी अंग्रेजी में बोलता है, अंग्रेजी की है मास्टर की, मास्टर शादी है, मास्टर की मतलब ये से होता है अर्थ है कोई भी चीज कहीं भी चीज कोई भी ताला कहीं भी तालो आप उसे खोल सकता है। तारी शादी की खोल सके, कभी कभी चोर लोग चोर है उनके पास मास्टर की रहता है, यही शादी ताला खोला जाएगी। हालेलुया हालेलुया। मास्टर जी से खोलने वाला चोर को पकड़ने के लिए तारी शादी की खोलने वाला चोर ने पुलिस वाला रखा हुआ है, पुलिस ने मेरी हम पुलिस वाला है, अब वो पुलिस वाला है, इंसान है खुद मेरे कभी कभी किसी को थोड़ी देर के लिए खोलेगा, थोड़ी देर और उजाड़ करेगा, थोड़ी देर के लिए नहीं खोलता, थोड़ी देर और उजाड़ नहीं करेगा, भर के लिए जिंदगी और उजाड़ करेगा। प्रेम का घोड़ा, प्रेम ने आपका खुशी के शादी लगी, का खुशी बाइबल में शादी लगी। दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं हो सकता है, कोई नहीं खोल सकता। ये जो की लेकर ये भी शादी है, आप जाकर सो जाओ, समझ में आया। ये जो की है प्रेम नाम का की लेकर जी घर पे जाके सो जाओ, जी प्रेम वाली शादी है, इन्हें नहीं घेर धरी हुई, जब जरूरत पड़ेगा मेरे काम आएगा उसको निकालो, यानी शादी निकालो, कोई भी ताले बना लो और कहीं ना भी ताला तो लग जाएगा। इस तालों को आज आपके खुला कर देता हूँ, आज तुम्हारे खुला खुशी के द्वारा इस शादी के हमें शक्ति परमेश्वर तुम्हारे आशीष ने थैंक यू। हम इसमें वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपने बीच में पासवान है
वचन की सेवकाई में। हालेलुया। सब स्तोत्र। हालेलुया। मेरा जन्म हुआ एक पुरातन क्रिश्चियन फैमिली में, और मेरा चर्च में मेरा स्थान था अति विशुद्ध स्थल बोलता है, पता हो रहा है, अति पवित्र स्थल होता है। वहां मैं शुश्रूषक बन गया जब मेरा उम्र था 10। तो 10 उम्र से मैं शुश्रूषा करते आया, वो किया 30 साल किया, और 40 होके आया, और मेरा पढ़ाई हुआ, फौज में भर्ती हो गया, और पासवान के साथ हम लोग एक साथ काम किए। और मैं सोचता था कि मैं परमेश्वर के साथ चलने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मैं जहाँ मैं शुश्रूषा कर रहा हूँ अति पवित्र स्थल है, जहाँ अपना विश्वास में क्या है, वहाँ प्रभु रहता है। चर्च के अंदर प्रभु रहता है। चर्च के अंदर जहाँ अति पवित्र स्थल है, वहाँ उनका जो पूरा भाव रहता है। तो मैं सोचने लगा कि मैं उनके साथ रहता हूँ और वो मेरे साथ है, इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। समझिए। तो बचपन से सब कुछ शुरू कर दिया। मेरा वैसे 12 साल में मैं दारू पीना शुरू कर दिया, और उसी के साथ सिगरेट पीना शुरू किया। ये सब करते भी 6 दिन ये सब करके 7वां दिन चर्च में एकदम खड़ा कर, वो क्या बोलता हूँ, मतलब पर्दा डाल के, मतलब सब बांध के हम तैयार है। तो 7वां दिन पूरा करके सोचता कि ये जो 6 दिन जो कुछ भी पाप किया पूरा पुण्य हो गया। जाके मतलब वहाँ जो पादरी है, पादरी से सब कुछ बोल देता, और पवित्र भोजन लेता, सब खत्म हो गया। इसी विश्वास में चलते आए, और नेवी में भर्ती होके नेवी से रिटायरमेंट ले लिया, और गांव में आके कोई धंधा शुरू किया, यही मेडिकल प्रोफेशन, मतलब क्लिनिक खोला। उधर मैं क्या किया, और थोड़ा परमेश्वर के साथ होने के लिए विविध तरह का आलमी क्या बोलता है ये लिया, मतलब पढ़ाई किया। मैं बहुत सारा पढ़ाई किया, जो कुछ भी मेरा हाथ में पैसा था, तो इसलिए जो कुछ भी पैसा दे के पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई किया। और मैं सोचा मेरे ऊपर बहुत मतलब शक्ति आ गया, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ऐसे बोल के। मैं मतलब बहुत लोग मुझसे मिलने आता था, भाषण सुनने के लिए आता था, और मुझे ले जाता था भाषण देने के लिए। तो ऐसे बितरा मतलब ऊपर होते रहा, और 2007 के अंत में मुझे मौका मिल गया गल्फ जाने के लिए। तो वहां चला गया, तो बहुत बड़ा काम था, सैलरी भी बहुत ज्यादा, मतलब 1.5 लाख तक आ गया सैलरी। तो मैं सोचा सब कुछ, मतलब खुदा ने सब कुछ दे दिया, जो भी मेरा मतलब जिंदगी में चाहिए, क्योंकि मैं शुश्रूषा किया, मैं सेवा किया, इसलिए सब कुछ मुझे दे दिया। तो मेरा जिंदगी सच में ज्यादा बिगड़ने लगा। जब ज्यादा पैसा आने लगा तो ज्यादा बिगड़ने लगा। ऐसे गया 2009 के शुरुआत में मैं घर आया, तो पासवान जी से मिला। हम लोग क्योंकि अगल बगल का घर है, तो बातचीत करते निकलते वक्त इन्होंने एक वाणी मुझे कहा कि प्रभु का चुनावत है, चुनौती है, प्रभु का चुनौती। मैं तो ऐसे हंस करके, क्योंकि बहुत सुना है, बहुत लोगों के मुंह से बहुत सुना, तो ऐसे चला गया। लेकिन उस बार मैं वापस जाने के बाद क्या हुआ, वहां जाके मेरा चिंतन पूरा बदल गया, अलग हो गया मेरा। तो मेरा जो बॉस था, बॉस मुझसे कहने लगा कि अभी अब तक झूठ बोलना पड़ेगा, काम आगे जाके क्योंकि झूठ बोलना पड़ेगा। तो तुम जो कुछ भी इधर देखता है चुप रहना चाहिए, किसी को कुछ बोलने का नहीं। आपको जितना मिलना है वहां मिल जाएगा, बैंक में आ जाएगा, सैलरी बढ़ता जाएगा, आपका प्रमोशन बढ़ता जाएगा, चुपचाप रहने का। तो मैं बोला मेरे से नहीं होता। तब मैं सोचा मतलब क्या है जो चीज मुझसे करने के लिए, मतलब ये नहीं कर रहा, अलग नहीं कर रहा, समझिएगा। तो सोचने लगा, मतलब मेरा रूम में आकर सोचने लगा, तो कैसे भी मेरा दिल में, मतलब मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझसे बोल रहे कि तुम मेरे साथ नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं।
समझिए। तो एकदम मैं डर गया, मतलब मैं जो सोच रहा था पिछला मतलब 45 साल में मेरा साथ जो है अभी बोल रहा है मेरा साथ नहीं है। तो मैं सोचा मैं कैसे आपको पा सकता हूँ। तो मुझसे एक वाक्य दिलाया गया, वो यिर्मयाह में आपको मिल सकता है 29 में 29। कोई लोगे यिर्मयाह 29 वाक्य मिलेगा 13 तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। ढूंढो, उसको बोलो। पैसों के पीछे जाने वाले लोग नहीं, उसको बोलो काम करने के लिए, तो हम उस कलिसिया में ले लेंगे उसको। पैसों के पीछे भागने वाले तो काम नहीं कर समझ गए ना? बिल्कुल। हम उसको बाद में आप थोड़ा सा हमारा सेक्शन बनाएंगे उसको। हाँ, आप लोगों के नीचे एक टीम बनाते हैं। समझ गए ना? एक टीम बनाते हैं, ऐसे करके एक को बढ़ा सकता है। बिल्कुल। हम जब आते हैं और मीटिंग में लगा सकता है कुछ। हाँ, वो सारे काम में अरेंजमेंट में उसमें क्या होता है, नए लोग जब आते हैं चाहे 100 रुपया डालो, उधर करके कुछ न कुछ करके हमें एक मीटिंग लगा सकते हैं। सही। आने वाले दिनों में हम ऐसे करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमें मदद करके हमारे बीच में जो माइक वाला सब कुछ समझ गए ना, एक एक करके छोटे छोटे आइटम करके कर दिया गया, तब हमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं रहेगा। 70,000 रुपये का जो पूरा खरीद से तो लोग खरीदते। अभी देखो, अभी खरवाड़ा में कन्वेंशन हुआ था, इन लोगों ने खुद में खरीद के रखा 1.5 लाख रुपये का साउंड सिस्टम पूरा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तो बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं। और वो अच्छा वाला खाली ऑपरेट करने के लिए ही एक आदमी अच्छा होना चाहिए बस। वो तो बहुत सारे अभी है सीखे हुए, बहुत सारे लोग हैं ना। हाँ। जब हम आगे बढ़ते तब मदद करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। इधर लोग हैं, इनके पास पैसा है, बिल्कुल पैसा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, लेकिन प्रभु अंदर नहीं है तो अंदर से क्या निकलेगा? ऐसे 4-5 जन हो तो कुछ पैसा हो जाएगा। अभी कन्वेंशन में कैसे आया? सोचा भी नहीं है ऐसे। तो ऐसा ही है, बोला ये डीलर और ये मास्टर बहन कोई सब करते हैं। जो खेरवाड़ा में हुआ, खेरवाड़ा में फ्री है, जितने भी टीचर फूलों को ईश्वर के स्वर्ग में किसने बनाया? फूलों को ईश्वर के स्वर्ग में किसने बनाया? मछलियों को ईश्वर के स्वर्ग में किसने बनाया? मछलियों को ईश्वर के स्वर्ग में किसने बनाया? चिड़िया को ईश्वर के स्वर्ग में किसने बनाया? चिड़िया को ईश्वर के स्वर्ग में किसने आपको